Respected teachers, in this class, Altaf sir will be teaching you tenses, rather simple tenses, present simple tense, past simple tense, and future simple tense. I will teach you all these tenses comparatively, so you will be able to compare their usages as well as their structures. But before I start teaching you, let me tell you one important thing related to spoken English. This is untold thing because this thing is not told in the classrooms, and this thing is not told also to the teachers. That is why it is untold. The untold thing is about spoken English is that the tenses, only 6 tenses out of 12, comprise 90% of spoken English. Only 6 tenses out of total 12 tenses comprises 90% of spoken English. It means if you master tenses, only 6 tenses out of 12, it means you have mastered 90% of spoken English. It means you have mastered 90% of spoken English if you master just 6 tenses out of 12. And among 90%, these simple tenses, present simple tense, past simple tense, and future simple tense comprise 60% of English. How many percent? 60% of English in इस simple tense से आती है. बट ये बात नहीं बताई जाती है टीचर्स को और ना ये बात बताई जाती है स्टूडेंट्स को. ये छुपा कर रखते हैं वो लोग. अब 2 तरह के कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको. इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, सोसाइटी में मिलेंगे 2 तरह के लोग. एक कैटेगरी के लोग होंगे वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं बस. वो सुन के उन्होंने वो सीखे होंगे कुछ सेंटेंसेस और वही नरेट करते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं. दूसरे कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको वो लेस मतलब पुअर स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होंगे. उतना उनको होल्ड नहीं होगा उस लैंग्वेज में, लेकिन वो ट्रेनर्स होंगे. वो क्या होंगे? ट्रेनर्स. उनको पूरा सिलेबस पे अबूर होगा कि स्पोकन इंग्लिश इज इंग्लिश दैट वी स्पीक इन आवर डेली लाइफ, दैट वी स्पीक विद आवर फ्रेंड्स, family, in school, in colleges. That's called spoken English, and it is entirely different from written English. Written English में hard and fast rules होते हैं. Spoken English is flexible type of English. ये बात वहाँ वो नहीं बोलते हैं. एक तो होते हैं जहाँ में ट्रेनर्स, दूसरे होते हैं जस्ट स्पीकर्स. तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह I am trainer. It is not imperative for me to speak fluent English, not for you also. But we have to try to become the trainer of this language. Trainer आप कैसे बनोगे? When you know the syllabus of spoken English, when you know how it should be taught systematically in a classroom. सबसे पहले, first of all, you should know one thing. There are only 3 types of. इतनी English language, only 3 types of sentences है पूरे English language में. Only 3 types of. एक तो आपको एक्शन वाले sentences मिलेंगे, एक्शन वाले जिसमें एक्शन होगा. दूसरे टाइप का सेंटेंस मिलेगा आपको स्टेट ऑफ बीइंग वाला जिसमें एक्शन होता ही नहीं. तीसरे टाइप का सेंटेंस मिलेगा आपको स्टेट ऑफ पोजेशन वाला. इसमें सारी चीज़ें आपको आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा, जिसमें आपको सिर्फ ये मिलेगा कि किसी पर्सन ने कोई चीज़ ओन किया है. स्टेट ऑफ बीइंग में मिलेगा आपके कि कोई इंसान क्या है, कैसा है, किसके साथ है, कहाँ. हाँ बिल्कुल, स्टेट. कंडीशन. एक्शन तो माशाल्लाह आपको पता होगा. यही नहीं 3 सेंटेंसेस के इर्द गिर्द सारी इंग्लिश क्या दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में यही 3 बातें होती है. तो एक्शन होगा सेंटेंस में, या तो उसमें स्टेट होगा या तो उसमें पोजीशन होगा. स्टेट में भी स्टेट ऑफ बीइंग टेक्निकली बोलते हैं. लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर नाउ. Present simple tense, or you can say simple present tense. You can also, it is also called the present indefinite tense. Why it is called indefinite? Why it is called simple? That is not necessary for you to know. That is not necessary. मेरा नाम अल्ताफ हुसैन शेख है. It does not make any difference. उसका नाम खुशी है. Does not make any difference. Difference इस बात से पड़ती है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ. हाँ, there is a logic behind it. Why it is called indefinite? I will also tell you the reason inshallah in the later part of my lecture.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे कि इसका ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसकी यूसेज क्या है, या हम बोलेंगे इसका यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारी डेली लाइफ में। अगर आप अक्सर पढ़ाएगा तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इससे, फिर वो नॉलेज हम ट्रांसमिट करनी है आपको स्टूडेंट्स तक, उनको इम्पार्ट करनी है वो नॉलेज, तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। देखो क्या फ़ायदा मिलेगा, दो तरीके होते हैं टेंसेस पढ़ाने के। एक तो फ्रॉम ग्रामर परस्पेक्टिव हम पढ़ाते हैं, वो तो आपने पढ़ा फ्रॉम ग्रामर परस्पेक्टिव 15-20 साल हो गए, आपने घर में भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश नहीं आती, हालांकि 90% इसी में है। हमें पढ़ना है स्पोकन स्टाइल से। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टीच यू दीज टेंसेस कंपैरेटिवली फ्रॉम स्पोकन स्टाइल, इन स्पोकन स्टाइल इंशाल्लाह। आई विल आस्क यू also questions. You should not worry about that. Present simple tense, you can also say simple present tense. This is past simple tense. और इसकी जो अमेरिकन के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सिखाऊंगा। और अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन दो तरह की होती है, एक तो यूएस होती है और यूके की होती है, बरतानिया की, दूसरा वो यूएस। And both pronunciations are used in the world interchangeably. दोनों का इक्वल वेट है, दोनों का इक्वल वैल्यू है। वहाँ इसको अगर आप यूट्यूब देखोगे तो वहाँ बोलेंगे पास्ट, वो भी ठीक है, पास्ट भी ठीक है, वो यूके। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, एंड दिस इज फ्यूचर सिंपल टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब याद रखो ये बात, इसका यूज हम कश्मीरी लैंग्वेज में यूज करेंगे इसमें। कश्मीरी पढ़ते आपसे बच्चों वो भी आप याद रखो। कश्मीरी में आपको बच्चे को बोलना है, ये जो बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसका जो यूज है उसका शुक्र, शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज। सको सा यस तोय दुहाई करन छु, सकम यस तोय इंग्लिश में भी ये भी हम करेंगे, उर्दू में भी माशाल्लाह आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, पहले कश्मीरी में समझने की कोशिश करो। सकम यस तोय दुहाई करन छु, सकम यस तोय या सकम यस तोय कुनि साथ करन छु, है ना पानी जबान। सकम यस तोय दुहाई करन छु या सकम यस तोय कुनि साथ करन छु, तिम सारे कामे हको, तिमन कामेन हुन जिक्र हको अस करित प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चरस मज। गोड़ स्ट्रक्चर पता ये मकान स्ट्रक्चर पक्ष मसले कर बनाए मेसन 2 सेकंड में नक्शा खाका यस दोहर कर या कुछ सात तुम कर सारे काम हूँ जिक्र हेको प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चरस मज कर सह कत हेको आराम सान कर सिचुएशन देखो सब कुछ इसमें कवर होता है। Present simple tense is used to talk about those actions that we do daily, that we do regularly, or often, or O-F-T-E-N. इसकी दो pronunciations है, often भी और often भी. Both are used interchangeably and both are valid. One is UK and one is US pronunciation. अब आपके सामने में एक बात रखूँगा, अगर इंग्लिश जो इंग्लिशमैन होगा मतलब बरतानिया का या फॉरेन, उसको तो ऑफन का मतलब हम बोलेंगे अक्सर, उसको मत अक्सर आएगा सर। ऑफन का मतलब है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है बेटा? एडवर्ब। ये मेरी नॉलेज तरीका है एड्रेस करने का। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑफन आता है। ऑफन मतलब गो यह हावन का 70% ऑफ द टाइम। अंग्रेज उसको ऐसे समझेगा कोई काम हो रहा है 70% ऑफ द टाइम, तो इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम बोलते हैं इसको अक्सर। क्या बोलते हैं? अक्सर से हमें समझना है रेतस में तकरीबन गजन 18 ठीक है। मैं क्या बोलूँ प्रेजेंट दिस इज द मेन यूज and this is the only use that is taught in spoken English, that is required in spoken English. It does not mean that there are not other uses of these tenses. Yes, there are other uses of these tenses in English grammar as well, but that are not necessary when we talk about spoken English.
को मेरी बात समझ आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड मी? शाबाश. It is used to talk about those actions that we do daily or often. That we do daily or often. Done? Any doubt? कोई भी काम सर, अब बच्चा बोलेगा, बच्चा कहाँ बोलेगा, आपको ही बोलना है ना. एग्जाम्पल एक दो, फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा मोटिवेट करना है, फिर एक दो काम उसको बोलोगे एक्शन, उसके बाद वो बाकी बोलेगा. उसको आप बोलोगे कि बता बेटा कौन सा ऐसा काम है जो आप रोज करते हो. स्कूल जाता है, स्कूल जाते हैं ना रोज. सर मैं इतवार के दिन वहाँ पार्क में जाती हूँ कभी कभी, या 30 दिन के बाद हम दूध वाले को, मुझे घर वाले बोलते हैं इसको पैसे दो, कभी कभी. या रोज होमवर्क रोज करते हैं, कभी कभी लड़ते भी हैं, सर्फिंग भी करते हैं. सर्फिंग मीन्स नेट चलाते हैं. तो ऐसे आपको बच्चे को समझाना है. ठीक है, बात समझ आ रही है? ये याद रखना. अब चलो इसकी हम बात करेंगे. मैंने कहा ना कंपैरेटिव पढ़ेंगे, बस इट विल टेक जस्ट 40 मिनट्स. क्लियर? इट्स द मेन यूज दैट यू नीड इन स्पोकन इंग्लिश. कोई भी काम जब रोज करते हो, हाँ सर मैं कभी कभी या मैं मदर को शाम को के टाइम हेल्प भी करती. इतना तो आप फिर आपको अंडरस्टूड है. क्या क्या आप उसको बताओगे या उनको बताओगे? समझ आ रही है बात? शाबाश. कभी कभी हमें वॉशिंग भी करती हूँ, कभी कभी मैं वो आयरनिंग भी करती हूँ. आयरनिंग मतलब शाबाश. उसकी भी दो प्रोनाउंसिएशन. चलो पास्ट सिंपल टेंस. द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. नाम से ही पता चलता है. कोई भी काम जो आपने पास्ट में किया, कोई भी काम, यू कैन मेंशन हियर द टाइम ऑफ द एक्शन एंड यू कैन नॉट. इट इज ऑप्शनल हियर. यू कैन से आई मेट हिम yesterday, you can simply say I met him. So time is, mentioning time is optional in this tense. The work that you did in the past comes under the category of past simple tense. That you did in the past. That you did. इतना ही हमें जरूरत है यहाँ. The work that you did in the past. काम किया, बात खत्म. दिस इज वन टाइम एक्शन. इट्स नॉट लाइक पास्ट कंटिन्यूअस कोई चल रहा था. वन टाइम एक्शन. मैं उससे मिला तो मिला, बात खत्म. मैंने आपको पढ़ाया तो बात खत्म. वन टाइम एक्शन. दैट यू डिड इन द पास्ट. टॉक अबाउट दोज एक्शंस दैट यू डिड इन द पास्ट. फ्यूचर सिंपल. दिस इज आल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. टू टॉक अबाउट दोज एक्शंस that we are going to do, that we are going to perform in the future. अब देखो आपको कितना मजा आएगा इसमें. तो लगेगा आपको सिंपल है, तो कितना सीखने को मिलेगा आपको. सबसे पहले हम क्या करते हैं स्कूलों में, क्या होता है अक्सर वो टेक्निक गलत है, वो यहाँ पर भी हम फॉलो करते हैं. अक्सर मैं सर को बोलता हूँ वो गलत तरीका है, हम फॉलो करते हैं. बाकी सब जो हमारे बच्चे हैं ना, उनका कालदोद कर उनका सर फट जाता है. जो टेक्निक हम लैंग्वेज को यहाँ पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, हम रैंडमली कुछ सेंटेंसेस उठाते हैं, यहाँ उर्दू लिखते हैं, बोलते हैं, कि यहाँ इंग्लिश लिखते हैं, वो गलत तरीका है. दुनिया में जो सबसे ईजी लैंग्वेज है ना, दैट इज इंग्लिश. इससे ईजी दुनिया में है ही नहीं. दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न इन द वर्ल्ड कंपैरेटिवली. सबसे ईजी. सर ईजी कैसे है? यू नीड टू लर्न जस्ट टू थिंग्स. Learn the structure and learn its situation. Learn the structure and learn its situation. फिर आप अंग्रेजी बोल सकते हो. सर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है. फिर ये सिचुएशन हमारे सामने मोस्ट ऑफ द टाइम्स आती है जब हमें किसी के सामने बोलना पड़ता है कि कल हमने क्या किया, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या किया, या कल क्या करेंगे. बहुत बड़ी सिचुएशन है. हम रोज क्या करते हैं या कभी कभी क्या करते हैं. स्ट्रक्चर दो बच्चे को, ये सिचुएशन समझाओ, फिर वो ऑन हिज ओन या ऑन हर ओन, देन दे विल बी एबल टू मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस. हम क्यों बोलते हैं उसको, मैं वो कल भी यहाँ गया, मैं कल वहाँ गया, कुर्सी पर वो है, ये है, आप कहाँ थे, ऐसा मत बोलो. स्ट्रक्चर पढ़ा, सिचुएशन पढ़ा, फिर उसमें एक सेंटेंस लिखो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्टूडेंट्स खुद लिखेंगे.
जब आप उनको आप पूरा अच्छी तरह एजुकेट करोगे स्ट्रक्चर उसके मुताबिक और सिचुएशन उसके मुताबिक है ना, सही टेक्निक यही हम मत फॉलो करते हैं तो आज से यही फॉलो करना। सिंपल है तो सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। उसको बोलते हैं मिसलिनियस सेंटेंस जो हम दिखाते हैं अक्सर वो सर बोलते हैं, मैंने उसे भी कहा था इट्स अ रॉन्ग टेक्निक, दिस इज द करेक्ट टेक्निक। अब देखो स्ट्रक्चर, इसको फॉर्मेशन भी बोलते हैं। Before I teach you structure of these tenses, you must know one important thing. That is conjugation. अगर इस काशिर पढ़ वनो काशिर पढ़ वन बह युस ति वर्ब छु युस ति फैल छु यम अफआल छ इंग्लिशस मज तिहंज शक्ल मुख्तलिफ शक्ल 5 शक्ल आगो वर्ब 1 ब्यागो वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 मगर अंग्रेजी जबान मज वन ग्रामरस मज वन टेक्निकली मतलब गो इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर वहाँ वर्ड यूज होता है कंजुगेशन। कुछ साथ वन तो काम रियाज लंदन शब्द ब्या इंग्लिश नो सोन इश्तियाक शब्द करो इस वर्ब को कंजुगेट सर क्या वो कंजुगेट में बड़ा खतरनाक वर्ड करो सोद वन इन फॉर्म्स इस वर्ब की 5 फॉर्म्स लिखो। Every verb has 5 forms. How many? 5 forms. Except B, B has 8 forms. Except B, B has 8 forms. सारे लिखेंगे, अब एक ही टाइम में सारा नहीं होगा। तो remember this thing. Every verb has how many forms? 5 forms. Except B, B has 8 forms. इसको technically बोलते हैं conjugation. Conjugation मतलब उस process या process में how ये अगले मतलब how एक वर्ब कुछ 5 form. सो नाउन कंजुगेट को वर्ब कंजुगेट मतलब को यत वर्ब बस बनाई तो कौन फॉर्म ये थोड़ा याद CONJUGATE GATE सारे वे कंजुगेट ये अब याद रखना, मैं लिखूंगा काम बोलूंगा ज्यादा। फायदा कबूर में नजर दिस इज प्ले, दिस इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज में हम बोलेंगे V1। क्या बोलेंगे बेटा? V1। इसके बाद है, हालांकि इनका टेक्निकल नेम है, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। फिलहाल आप ये याद रखो। दिस इज V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज कॉल्ड पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड ये गलत हो गया, सॉरी I have made the mistake here. Now I have corrected it. Played. Third form is also played. V3. This is called past participle form of verb. Sir, this is called present simple form of verb. This is called past simple form of verb. Sir, then why this is called past participle? Why participle word has been added to the name of this verb? उसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि ये एक्ट करता है समटाइम्स एज एडजेक्टिव। वो आगे हम समझाएंगे आपको इन कमिंग क्लासेस, वहाँ हम नहीं जाएंगे। V1, V2, V3, अब V4। You should never need to learn fourth form of verb. This is also called present participle form of verb technically. उसका भी रीजन है। सर क्यों नहीं? फर्स्ट फॉर्म लिखो इधर, पहले लिखा उसी को ING ऐड करो, उसको बोलते हैं इंफॉर्मा वर्ब। एक और खास नाम जो आपको याद रखना है, that this form is also called informal। हाँ वो तो हो गया। This form is also called continuous form of verb। Yes sir। ये एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाता है। वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। सिंपल है। बोलेगा हाँ, अगर जब यहाँ ये आएगा ये हटा के हमें वो फिर ING वो भी किसी वर्ब में आता है। प्लेड और देखो बी फिफ्थ फॉर्म में मैं लिखूंगा सीधा प्लेस। सारे एस कहाँ से आ गया? अब अल्ताफ सर आपको सिखाएगा कि ये जो वी फिफ्थ फॉर्म है, टाइम चेक कर। I will teach you just for 30 minutes. How many minutes have remained? 10 minutes. 10. Now I will teach you
बोर नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए आप। 30 मिनट्स इज सफिशिएंट। तो साइकोलॉजिकली भी ठीक नहीं है इफ आई ड्रैग दिस क्लास मोर देन 30 मिनट्स। V1, V2, V3, V4 and V5. Now question arises here. सर ये समझ आ गया, प्लेयर। ये जो V5th फॉर्म है ना, यहाँ प्रॉब्लम होती है टीचर्स को भी, तो जब टीचर को तो स्टूडेंट को भी होगी, बिकॉज दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज मेड इन 3 ways। तीन तरीकों से बनती है। मैं सिखाने का प्रयास करूँगा, उसके साथ हम क्लास करेंगे एंड, क्योंकि 10 मिनट्स उसमें लगेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द नॉलेज जो मुझे देनी है आपको रिलेटेड टू दीज टेंसेस इन माय कमिंग क्लासेस, अगर आप विलिंग होंगे मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले याद रखना, कोई वर्ब ऐसा मिलेगा आपको जिसमें आपको सिर्फ पहली फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगाना है। ऐसे भी कुछ वर्ब्स हैं सर, वो कौन से वर्ब्स हैं, कैसे पहचानेंगे? रूल सिखाने वाला हूँ ना अभी। और कुछ वर्ब्स मिलेंगे आपको जिनको एंड में आपको बेस फॉर्म को सिर्फ ES लगाना है, आपका V5 बन गया। कभी कभी बेस फॉर्म को आपको S ऐड करना है, आपका V5 बन गया। सिंपल एक और तरीका है जो डिफिकल्ट लगता है सबको, IES, बस यही 3 तरीके। कभी कभी ऐसा वर्ब आएगा आपके सामने, कॉन्फ्रेंट करोगे ऐसा वर्ब जिसमें आपको IES लगाना पड़ेगा। अब मैं सिखाऊंगा ये यहाँ, समझ आ रहा है? ये समझ आया आपको? अब देखो याद रखना, ये लिखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लिखना ओ, मेरे साथ साथ लिखना O S SH CH SS X। इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन Z भी है और Z भी है। Z है US और Z है UK प्रोनाउंसिएशन। O S SH CH डबल S X और Z और Z भी आप बोल सकते हो। याद थी काशिद पर मान बोलते हैं कहाँ थी वर्ब, यूज एंड कैसे, यूज एंड कैसे, ओवरस्टेट S पर SH CH SS X Z। इसके साथ उन वर्ब्स की 5th फॉर्म कैसे बनती है? सिंपल है, उन वर्ब्स के एंड में आप सिंपली ES ऐड करना। क्या ऐड करना है बेटा? ES, सिर्फ ES। सर कंप्लीटली बात समझ नहीं आए, गिव अस सम एग्जांपल्स ऑफ दोस वर्ब्स। आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ ऑल दोस वर्ब्स विद सेंटेंसेस आल्सो। सबसे पहले ये तो सिंपल है, गो है ना V1, फर्स्ट फॉर्म है ना गो, ओ आ गया ना। सर इसकी 5th फॉर्म कैसे, बोल दिया ना, ओ आ गया ना, तो ये सेट करो। ये V1 से क्या बन गया, सीधा गो ही लिखो और यहाँ ये सेट करो, हो गया गोस। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, वो तो बीच वाली है, हम सिखा रहे हैं आपको 5th वाली। सर उसके बाद S, इसको लिखेंगे V1, इसको लिखेंगे V5। आपका S, ये एक S होगा इसमें, देखो ये एक ही S होगा या 2 S, डजंट मैटर, ये गलत हो गया था। एक S होगा या 2 S भी हो सकते हैं, 1 S भी होगा या 2 S भी हो सकता है। यही मिस ये मिस नहीं मिस जो, हाँ यस यू आर राइट, मिस वर्ब है। मिस का मतलब, इसका दूसरा मीनिंग भी है एज नाउ। मिस का मतलब किसी को याद करना, मतलब आई ही मिसेस मी अलॉट, है ना, वो मुझे बहुत याद करती, वो करता है, ही मिसेस मी अलॉट। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो मिस आ गया ना, तो इसको क्या करना है, यस सर, सिंपल यस। अब देखो इसके 5 फॉर्म्स के समझ आ गया? यस सर। मिस, मिस्ड। अब मैंने मिस्ड बोला ना बेटा, आपको ये समझ लेना, ये MIST वाला बोल रहा है, ये मिस्ड बोल रहा है। यहाँ देखो एक और चीज सिखाऊंगा। अभी हम यहाँ रुक गए, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। क्योंकि जब मैंने इसके 5 फॉर्म्स बोले, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, वो तो सिंपल था। यहाँ मेरी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई, मैंने मिस बोला, इसका 5th फॉर्म ऐसे बनाई तो कलियर है, समझ आ गया। लेकिन कुछ और
वर्ड्स मैंने यहाँ प्रोनाउंस किए, मैंने बोला मिस्ड। मेरा उस असातिज़ा किराम को भी कंफ्यूजन होगा, शायद मिस्ट ये फॉर्म है इसकी, दूसरी तीसरी भी अल्ताफ सर बोलेगा मिस्ट, तो ऐसा नहीं है, ये वो दूसरा मिस्ट है। देखो इसकी दूसरी फेल लिखना भी जरूरी है आपके लिए, MISSTD, में मिस्ट। इसी की प्रोनाउंसिएशन मैंने निकाली मिस्ट। सारे मिस्ट कैसे बन गया वो प्रोनाउंसिएशन लेक्चर्स में सिखाऊंगा। याद है जो आकर्षण गोबर इसी ईडी छुना कांति वर्ब, कांति वनी में से कांति युस एंड गैस ईडी से कैसे कैसे एंड तभी ईडी ब्रोड अगर तो ऐसे कैसे नजर क्या गैस नजर तभी ईडी ब्रोड अगर तो ऐसे कैसे नजर तभी वर्बुच यस लास्ट साउंड छासन सचासन ट अंग्रेजी यस मुच आख साउंड ताचवनन ट सर ये टी छु स्मॉल आ ये छु टी ये छु मैच करन ये छु पिरालन अपीयरेंस तास मगर ये छु टी के ये छु पढ़न ट क्योंकि अच्छे तिमन साउंडन हिं सिंबल थावन ये पढ़ना बतो ये प्रोनाउंसिएशन पढ़ना वार कर अच्छे तिम स्लैंट लाइन में थावन इन गई स्लैंट के ये चीज थावन यस सर ये छु टी के ये छु ट वो मिस्ड मिस्ड ने इसने वाला मिस्ड नो सर ही मिस्ड मी अ लॉट इट्स नॉट मिस्ड उसने मुझे मिस्ड कॉल तो मिस्ड बोलना इससे ये मैं सिखाऊंगा। ईडी वर्ड्स जो है ना ईडी वर्ब्स उनको तीन तरह की प्रोनाउंसिएशन एंड में निकलती है, ट भी निकलती है, कभी ड भी निकलती है, कभी ये मैं वहां सिखाऊंगा आपको। तो मिस्ड बाकी तो चौथी तो सिंपल है मिसिंग सिखाया ना अभी, और मिसेस तो आ गया। उसके बाद CH आ गया ना। अब देखो इस पे यहाँ मुझे सीखेंगे पता वहाँ CH है तो कैसे बनेगा इस पे वर्ब आप भी बताना मुझे। वॉच आ गया ना CH एंड में। सर इसका फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगा? सिंपल आता है सर ने ट्रिक सिखाई, ये तो मेरी ट्रिक नहीं है तो रूल है नियम है। तो वॉच है ना CH आ गया ना S लगा दो यस। देखो बच्चे को अगर आप ऐसे सिखाओगे ना उसको ये सब कुछ आसान लगेगा, वो मेमोराइज उसके रात में या तो उससे रोज लर्निंग क्राइमिंग करने से क्या उसको अच्छी तरह मतलब कंप्लीटली वो कंप्रहेंड करेगा चीज़ों को, वो इतना एबल हो जाएगा कि वो दूसरे को पढ़ाएगा जब आप उसको ऐसे पढ़ाओ। ये सारा 90% यही है, बाकी जो मैं स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन बोल रहा हूँ दैट इज जस्ट 10% इंग्लिश, इतना ही सिखा लो कम से कम। हालांकि ये चीज़ तो एक ही दिन में पॉसिबल मत है, 30 मिनट्स हो गए अभी तो मैंने स्टार्ट ये मानो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। तो इसको 1-2 महीने 3 महीने लगते हैं। तो वॉच इसके समझ आ गया ना। इसकी भी जो बीच वाली फॉर्म्स है ना दैट विल the pronunciation of second form of this verb, the pronunciation of third form of this verb will also wander separately. सच कर तो हैरान, that is not watched, हम बोलते हैं ना watched। Good pronunciation creates good impression, bad pronunciation creates bad impression among listeners। ये बात आप याद रखें। अगर वो वरना I watched a film yesterday, ये आपको पास। अगर मैं किसी के सामने बोलूँगा I watched a film yesterday, हाँ कुछ तो यूनिक है, डिफरेंट pronunciation, सोचो इज्जत है। ये याद रखें। मेरे साहब ये तो कोई मसला ही नहीं है, आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करो, ये कोई मसला ही नहीं है। ये अगर योर ना दूसरा टीचर आएगा सुधाई तो डर वार हाई फाई स्टाइल सुधा भी इंजीनियरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने पढ़ा है, मैंने जिंदगी आई हैव गॉट मास्टर्स डिग्री है मुझे इसमें, और जो मास्टर्स डिग्री से लागत कर करेंगे मुझे तो ये मैं इज्जत सर मैं वाइस कहीं तो तूफान कुछ भी आता सर उनका वो एटीट्यूड होता है, कोई मसला नहीं है। It's a matter of just 30-40 days. Got it? I am a bit tired. I am about to finish the lecture. I will take just 5 minutes. 5 minutes.